Hey everyone, I welcome you all to my channel and please do subscribe to my channel if you like my content. So let's skip to the main part, that is the last 6 month strategy to the INI CET. I think not 6 months even, it's just 4 to 5 months remaining for the INI CET, and I want you all to be well versed with these things and the proper schedule as far as INI is concerned, and the major points that you have to look upon, because बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आई में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड नीट पी जी इन आई में यही डिफरेंसेस होते हैं जो हमें बहुत ही माइन्यूटली वर्कआउट करना होता है एज फार एज आई सी टी एग्जामिनेशन इज कंसर्न. The first and the most important thing, it is doable. It is something that you can easily crack. It is not defined by whichever marks you had in your NEET UG, whichever college you belong to. Is it a state GMC, or you are already in Amsonian, or maybe you are from a private college? It does not depend on it. It is really doable. The first thing and the most important thing that I very much face when people tend to ask about NICT is कि हम ये एग्ज़ाम सिर्फ देने के लिए दे रहे हैं. Recently, I met with two of my very dear juniors, and जब मैंने उनसे पूछा तो they had the same reaction कि दीदी NICT देना होता है या नहीं. तो प्लीज़ यार ये मत करो यार. NICT is given, इसको स्किप नहीं करना है, इसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है. डू नॉट टेक दिस एग्जामिनेशन एज सम ब्लंडर स्टफ. यू जस्ट गो जस्ट फॉर द फैंसी स्टफ. तुम जाके वो एग्जामिनेशन दे रहे हो, मत बर्बाद करो ये पैसे. You have to give the examination for the sake of getting the seat out of it. And this is the second most important mistake that I face, that many people around me are going through. तुम्हें ये चीज़ चेंज करनी होगी कि तुम वो एग्ज़ाम सिर्फ देने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो टू गेट अ सीट. इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग, इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ सीट एट एम्स. ओके फाइन, मैं तुम्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट करके नहीं दे रही हूँ, बट देर आर पीपल आउट हियर जिनकी नीट पी जी में रैंक, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दिस वॉज इन 4 digits एंड हैव कम टू सिंगल डिजिट रैंक. तुम पता कर लेना तुम्हारे सोर्सेज इन्फॉर्मेशन से, बट देर आर पीपल, आई हैव पर्सनली मेट योर मेनी पीपल आउट योर जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, MBS करी है, एंड दे आर हियर विद सिंगल डिजिट रैंक्स. आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू मेक इट अ वेरी extrapolated kind of thing, but I'm trying to make it ki yes, it is doable. Like many of them were in 5 digit rank and have come up to 2 digit rank in the NICT, so it is pretty doable. करो तुम एग्ज़ाम और इस एग्जामिनेशन को सीरियसली दो, इससे सीट लेने के लिए दो. अगर तुम इस माइंडसेट के साथ ये वीडियो देख रहे हो कि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन देना है, somehow मेक इट अप ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, आई डू अग्री विथ यू. इट्स गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अ लॉट if you come up around under 5,000 rank or something, but don't give the examination just for this purpose only. You have to give the examination to get the seat and not just giving the damn examination. It is pretty much doable. और ये चीज़ मानो, तुम as a person ये सोचते हो कि this is not meant for you. There are many people in the scenario जो सेम चीज़ सोचते हैं. मेरे सराउंडिंग में से बहुत लोग थे जिनकी नीट में, आई मीन जो भी अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, स्टिल कुडेंट इमेजिन द शेल ऑफ गिविंग NICT एंड गेटिंग इनटू एम्स. सो इसका एक फियर फैक्टर ही इतना बड़ा है कि पीपल डोंट इवन ट्राई टू अटेम्प्ट इट. यू गेट इट. देयर वेर 2 digit रैंकर्स थे नीट PG में एंड स्टिल कुड नॉट मैनेज अप टू NICT बिकॉज दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस. NICT is first to be dealt with the thought process, and that's why I want you all to be very well versed clear with the statement that you are giving the examination for the sake of getting the seat into the best institutes of the country, and not just for the sake of giving it. And nobody who's watching this video, I do not want you all to skip this examination. That's very important. The second thing that I want to address to all of you are the major points जो तुम्हें लास्ट 4 महीने, अप्रॉक्सीमेटली अब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं टू बी लुक्ड अपॉन. द फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना ये एग्जामिनेशन नॉट डुएबल है. तुम हैरिसन पढ़ लो, तुम गाइटन पढ़ लो, तुम गिनोंग, रॉबिन्स, लिपिनकॉट, जितने जितने बुक्स तुमको याद है, तुमने मेजर टेक्स्ट बुक्स छान मार ली है, तुम्हें एक लाइन है. यू कुड नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन इफ यू नॉट वेल वर्स विद दिस पॉइंट, एंड दैट इज द PYQs.
मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक पर्टिकुलर जीटी बुक बनाओ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। तुम्हारे पास इनफ टाइम है। मैंने ये काम 1.5 महीने में किया था, मेरे पास कम टाइम था एंड मुझे ये चीज़ बहुत लेट पता चली थी। बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर एट द वेरी फर्स्ट हैंड कि सबसे पहले जीटी बुक बनाओ। एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मेक अ जीटी बुक ऐसे एवे वाला, नॉट द जीटीज जो तुम देने वाले फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट यू आर इन, बीट मैरो, बीट डांस, बीट एनी प्लेटफॉर्म, आई डोंट केयर। जीटीज की जो जीटी बुक तुम बनाने वाले हो वो उन जीटीज की है जो INI-CET के पेपर्स हैं एंड आई वांट यू ऑल टू डू लास्ट 10 years के। एंड स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर का है ना वो तो ढंग से करना, बिकॉज देर आर मेनी रिपीट्स। आई मीन द मे सेट दैट आई गेव उसमें 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट फ्रॉम द नवंबर थे ऑफ द 2024। सो कुड यू इमेजिन कि मतलब ये लोग इमीडिएट रिपीट्स भी डायरेक्ट छापते हैं। इट्स लाइक अ डायरेक्ट छापना। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, INI में डायरेक्ट के भी ट्रेंड्स हैं एंड उनके प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चंस को भी घुमा चढ़ा के पूछने के ट्रेंड्स हैं। INI इज मेजरली अबाउट PYQs, द PYTs एंड उसके सराउंडिंग का एवरीथिंग। डू यू गेट इट? सो आई वॉन्ट यू ऑल फर्स्ट, सबसे पहली चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज योर GT बुक जो तुम लास्ट 10 year PYQs से बनाओगे। एंड आई डो नॉट वॉन्ट यू टू मेक अ ब्लंडर ऑन दिस कि तुम खाली आंसर रट लोगे। देर विल बी 10 years का पेपर, इट्स लाइक 20 पेपर्स क्योंकि हर साल 2 बार होती है एंड यू हैव 200 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सिमेटली 4,000 क्वेश्चंस ऑन योर हैंड्स। डो नॉट ट्राई टू मग इट अप एंड इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप। तुम्हें रेस्ट 3 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें उसके बारे में भी जानना है। बहुत क्वेश्चंस बहुत एविडेंट होते हैं, जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। बट बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता है बट तुम्हें बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो तुम्हें उन बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उन तीनों ऑप्शंस को पढ़ना, क्योंकि INI इज नॉट गोइंग टू मेक द एग्जैक्ट 6-7 क्वेश्चन तो देखो वो एग्जैक्ट डालेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट जो बाकी क्वेश्चंस आने वाले वो उनके ऑप्शंस में से आने वाले, इस चीज़ को समझना। जैसे मेरी जो नवंबर INI-CET थी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू। मेरी जो नवंबर INI-CET थी उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ अकैंथा अमीबासिस्ट एज फार एज आई रिमेंबर एंड उन्होंने फिर स्टेन्स पूछ रखे थे कि विच इज द स्टेन विच इज यूज फॉर इट। एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 years के पीछे के क्वेश्चन में देखोगे तो एक आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। उसमें ना उन्होंने बहुत सारे स्टेन्स के नाम दिए थे एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज स्टेन, एंड उसमें एल्को फ्लोर वाइट इज फॉर अकैंथा अमीबा दिया हुआ था। एंड दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई कुड क्रैक इट इन द एग्जामिनेशन। डू यू गेट इट? अब मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स नॉट द राइट ऑप्शन, इट्स द अदर ऑप्शन इज वेल। तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुमको लग रहा है बहुत आसान है, इट्स नॉट आसान। पहले तुम ये 20 पेपर करने में ही तुम्हारी नानी दादी सब याद आने वाली है। उसके बाद द अदर ऑप्शन वाला कॉन्टेक्स्ट इज गोना मेक यू थिंक अ लॉट एंड यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स इनटू दिस। इसमें एफर्ट नहीं डालोगे, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारा INI कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे जितने भी मुझे जूनियर्स मिले हैं विच आर MBBS, विच आर डूइंग MBBS बेसिकली, उन सबका ये था, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस PYQ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ना PYQ को घोल के पिलाया जाता है, तो तुम ये चीज़ समझो, तुम्हें इसमें मास्टरी करनी है। इसको सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है, इसको घोल के पी जाना है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। The second thing that I want you all to do is the 9 subject rule, which I have discussed in my previous videos as well. But if you haven't seen it, I wanted to discuss it here as well. And that is the first year के subjects, जिसमें तुम physio को हटा दो because it doesn't create that much of a weightage per se. The second year के subjects, the third year के subjects में I would say PSM and FM plays the major role. And final के subjects में OG and surgery. Surgery में भी it's the mostly the general surgery वाला part, but I'll take both the subjects. So these 9 subjects को अगर तुमने पकड़ बना ली, and that is what you're gonna do in the last 1 month before the INI-CET. I think 1.5 महीना पहले ले लो, 15 दिन जो INI-CET के पहले होंगे और उससे पहले का 1 महीना। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 9 सब्जेक्ट्स वेरी वेरी रिगरस। एंड फिर जो लास्ट 15 डेज का तुम्हारा स्लॉट होगा INI का, उस वक्त भी मैं चाहती हूँ कि तुम 9 सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ो, बिकॉज इन्हीं में से यू आर गोइंग टू गेट 150 क्वेश्चन स्ट्रेट। You do not need to look here and there. 150 questions from these 9 subjects plus the PYQs are gonna damn create your 160 to 170 questions. And let me make it very clear, जो last 2 INIs जो दोनों ही मैंने attempt किए हैं, 160 correct topper का होता है, 150 correct gives you under 100, 140 का ranges from 100 to 1000 का rank. Can you see the difference? It's one question पे हज़ारों रैंक का फर्क आ रहा है। You need to get just 150 corrects. You are under damn 100 and you are going to create कि तुम एम्सोनियन बनने वाले हो. Do you get that?
एंड इट्स प्रिटी डूएबल, तुम कर सकते हो, ठीक है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्केड्यूल। स्केड्यूल सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर तुमने सेल्फ क्रिएट किया है तो स्टिक टू दैट। आई वोंट से कि तुम ये जो मैंने बनाया है उसको फॉलो करो, बट स्टिल इफ़ यू वांट मी तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूँगी कि द जैन एंड द फेब का मंथ जो तुम्हारे पास है अभी, इस 2 महीने में सारे सब्जेक्ट्स का एक रिविजन करो। परफेक्ट परफेक्ट रिविजन में इतना डीप डाइविंग नहीं करना है, बट आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम्हारे पास जो ऑलरेडी फ्रेम्ड तुम्हारे नोट्स हैं या तुमने जो रिविजन नोट्स क्रिएट किया है, बीट BTR, बीट एनीथिंग, जो तुमने परफेक्टली प्लान, डू नॉट गो टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, do not read new things. I do not want you all to mess in the last 4 months with new things. बाउंसर्स आना का खासियत है, बाउंसर्स आना ज़रूरी है, उन बाउंसर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। वो 15-20 क्वेश्चंस किसी को नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी, वो टॉपर को भी नहीं आता है। तुम्हें नहीं आएगा चलेगा, हमको वो 15-20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करना है, पर वो जो 150 to 160 क्वेश्चंस जो डूएबल है, जो हर इंसान सही करने वाला है, हमको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो डू नॉट ट्राई टू जंप ऑन टू कि बायोकेमिस्ट्री में मॉलिकुलर बायोलॉजी से बहुत पूछते तो विल स्टार्ट टारगेटिंग एवरीथिंग। वी डू नॉट वांट दैट, हमको वो चाहिए नहीं, भले वो क्वेश्चन हमारा गलत हो चलेगा, बट अगर कोई चीज़ PYQ रिपीट है तो हमको डैम आना ही चाहिए। Your PYQs has to be 101% better on your hands. Do you get it? अगर एक भी PYQ मिस कर रहे हो तो वो तुम्हारी रैंक यूं फ्लक्चुएट करेगी। तुम्हें पता है 140 से 145 का रेंज है, लाइक 500 to 1500 people, and ANI has limited number of seats. We do not have to mess with these numbers. It's a play of damn numbers, right? तो सबसे पहले मैं तुम्हें चाहती हूँ कि ये पहले जो 2 महीने हैं तुम्हारे पास, उसमें तुम एक प्रॉपर रीडिंग करो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। मेडिसिन को इसी वक्त पे टाइम देना, क्योंकि आई वोंट बी सजेस्टिंग मेडिसिन इन द लेटर हाफ, जो लेटर हाफ हमारा टुवर्ड्स द NICT आने वाला है। आई एम सजेस्टिंग यू कि तुम मेडिसिन इसी पोर्शन में अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेडिसिन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ दैट वन सब्जेक्ट जिसकी ANI में पर से कोई वैल्यू नहीं है। मेडिसिन के क्वेश्चन फुली इंटीग्रेटेड आने वाले हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन, आई वुड से 6 to 7 क्वेश्चन होंगे जो प्योर मेडिसिन से आ सकते हैं, एंड उसके भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो तुम PYQs करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली पता चलते जाएंगे कि हाँ इन्हीं में से पूछ रहे, जैसे रिमाटोलॉजी वगैरह हुआ है, यू नीड टू जस्ट नो द मार्कर्स एंड यू डन विद द क्वेश्चन, राइट। एंड जैसे एंडोक्राइन हुआ जिसको भी इमीडिएट में काफ़ी वेटेज मिल रहा है, तो वो चीज़ें होती है जो तुमको करनी होती हैं। बाकी सब तो ईजिली मेडिसिन में भी हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन अगर नहीं पढ़ोगे तो पैथोफिजियो, फार्मा, उन सब से इंटीग्रेशन होकर तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मेडिसिन तो ये नहीं पूछते हैं। आई हैव एनालाइज लास्ट 10 years पेपर्स जब मैं एग्जामिनेशन देने जाने वाली थी, एंड आई फाउंड आउट कि मेडिसिन इज नॉट फॉर्मिंग दैट इंटीग्रल पार्ट। इनफैक्ट जब मैं नवंबर वाला अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने मेडिसिन बिल्कुल ही टच नहीं किया था। आई जस्ट फोकस ऑन माई 18 other subjects which are going to give me heavy weightage towards that, right? First 2 months proper reading. Now the third month and the fourth month, I want you all कि third month पे तुम वापस से एक second revision करो। Do you get that? Second revision वापस से, अब जो चीज़ तुमने 2 महीने पढ़ी है वो सेम चीज़, do not mess with the content, do not try to add new things, do not please ये बात मेरी मानना। तीसरे महीने ये जो सेम कंटेंट तुमने 2 महीने में पढ़े, क्योंकि तुम रिविजन करो, यू हैव टू बी एट द फास्ट पेस, तुमने इमीडिएटली रिवाइज किया, 1 महीने में ये कंटेंट्स खत्म करो। इट्स गोना गिव यू द 2 मेन डैम रिविजन्स। 2 हो गई तुम्हारे पास, अब आएगा तुम्हारा चौथा मंथ, दैट इज द अप्रैल का महीना। इसमें मैं तुम्हें चाहती हूँ टू फॉलो द 9 सब्जेक्ट रूल, कि ये जो 9 सब्जेक्ट्स है उसकी प्रॉपर रीडिंग। एनाटमी वेरी वास्ट, वेरी टायरसम, वेरी डीप डाइविंग। आई डोंट नो व्हाई ANI इज सो मेस्ड विद दिस सब्जेक्ट। ये इतना इमेज बेस्ड और इतना घुस के इन टॉपिक से पूछता है, तो इन सबको तुम प्रॉपरली रीड करो। दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी एज फार एज मैंने जब ANI दी थी, तो मैंने इन्हीं 9 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे नोट्स बने थे वही पढ़ूंगे, इनके भी तुमने जो RRs बनाए वही पढ़ना है, बट एक को एक लाइन याद होना चाहिए। डू यू गेट इट? क्योंकि एनाटमी हुआ, बायोकेम हुआ, उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पैथो हुआ, फार्मैक हुआ, इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। OG हुआ, खुद में ही इतना वास्ट सब्जेक्ट है, समझे?
तो जो ये तुम्हारा अप्रैल का महीना है, आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम अप्रैल के महीने में पूरा 9 सब्जेक्ट रूल ही फॉलो करो, उसको ढंग से पढ़ो। एंड जो लास्ट 15 डेज है वहाँ इन्हीं 9 सब्जेक्ट्स को वापस से रिवाइज करो। अगर तुम्हारे पास टाइम बनता है, यू आर अ फोमो काइंड ऑफ पर्सन, तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को नो डाउट रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम 7, मैंने ये भी एक चीज़ सोची थी कि क्योंकि मेरा थोड़ा ब्लंट स्ट्रैटेजी हो सकता है कि मैंने एक महीने का पूरा 9 सब्जेक्ट रूल ही बनाया था, पर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 21 डेज में 9 सब्जेक्ट करो या 20 डेज में तुम 9 सब्जेक्ट करो, एंड जो लास्ट के 10 डेज है वो तुम बाकी सब्जेक्ट्स को दे दो। बट प्लीज़ ये जो लास्ट के 10 डेज है उसमें मेडिसिन मत करना। मेडिसिन में बहुत टाइम जाता है, उसको देखोगे ना, जैसे मेरा टाइम था ना जब मैं मेडिसिन पढ़ती थी तो मुझे फोमो होता था कि यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, वो तुम्हें भी होगा। उस सब्जेक्ट को टच ही मत करो कि तुम्हें फोमो ही ना हो। ऐसा लगे कि पूरा ही सब्जेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं चलेगा, उसका नहीं आएगा। बट अगर तुम उसको पढ़ने बैठ गए ना तो तुमको ऐसा लगेगा यार ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ ले। नहीं करना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम वर्सेस एवरीथिंग करना है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, हमें कोई महारत हासिल नहीं करना। हमारा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हुआ, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, हैरिसन की किताब नहीं लिखनी है हमको, समझे तुम लोग। अभी जो लास्ट 15 डेज हैं, अगेन द 9 सब्जेक्ट रूल परफेक्टली अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी बैलेंस कर ली तो nobody, let me tell you, nobody can stop you from cracking INI-CET. It is pretty much doable. हवा बना के रखा है लोगों ने, बहुत लोग इस एग्ज़ाम को एवे अटैम्प्ट करेंगे। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि लोग इस एग्ज़ाम को ऐसे ही अटैम्प्ट करते हैं। ये सिर्फ देने के लिए देते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो लेके जाते हैं, समझ रहे हो। जहाँ वहाँ उन लोगों के कंपैरेटिवली अगर तुम एफर्ट्स डालोगे, एक्सपेक्टेशंस रखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, putting it the actual, the hard work, everything into the right direction as I have said you, nobody can stop you. And I want you all, please ये 3 चीज़ें, sticking to the schedule, the PYQs, the utmost important, and the 9 subject rule. These are the 3 rules which I want you all to follow in these last 4 months, 4.5 months towards the INI-CET. Stick to it and you can get through this. And if you have any comments like any कुछ भी questions आ रहे हैं तुम्हें तो please comment it down and I'll surely make a video on this. I know it's a very crunch of time. So yeah, take care. Goodbye.